Hello, all dear my students. I welcome you all to CHL Chan classes, your buddy to make audit easy. Right? Um, in the last lecture, what we have covered, our full lecture was dedicated to the responsibility of management for preparation of financial statements. Right? And today's lecture will be dedicated to the ethical requirements relating to an audit of financial statement. And if we are not having the short of time, as you know, I only record the videos for 30 minutes, then we will also be covering other topics like applicable financial framework is established by whom, and then we will be covering about professional skepticism, then requirement of AFRF. We will be covering all these things, and I think you are already aware of two words. One is overlooking and one is overgeneralizing. And if you are not aware of that, then I'll be having some examples to make you understand that also. So, without wasting the time, we should start with our today's topic of ACID 200. Right. So, what was the name of ACID 200? It was the overall objective of an independent auditor in conduct of audit in accordance with standards on auditing, right? So we will be starting with ethical requirements. Ethical requirement क्या होती है? Some set of rules, some set of codes which have been given by our the Institute of Chartered Accountant of India in its act of the Chartered Accountant Act 1949. CA inter level पे I think we are not that much required to explain, because this is the topic, this is the act which we read in CA final. सीए फाइनल की ये रिवीजन है. सीए इंटर के लिए ये एक एलाबोरेटिव वे में एक लेक्चर होगा डेडिकेटेडली फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे हम बेसिक मीनिंग समझने वाले हैं. सबसे पहले तो इस बात को क्लियर करते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन सीए इंटर वालों के लिए, अगर आपका क्वेश्चन एथिकल रिक्वायरमेंट पे आता है, तो यू जस्ट नीड टू राइट these 5 bullets which are simply integrity, objectivity, professional competence, due care, confidentiality, and professional behavior. And then we will be also writing this paragraph also in this in the your written exam, right? अभी हमने बस यही देखा है कि अगर क्वेश्चन आता है तो हमें ये इसी तरीके से कॉपी पेस्ट मार के आना है अपने एग्जाम में. बट आपको याद कैसे रहेगा? एक्सप्लेनेशन तो रिक्वायर्ड है ही ना. जिस भी टॉपिक को हम एलोबरेटिव वे में पढ़ते हैं तो वो अपने दिमाग में ज़्यादा टाइम तक सेट रहता है, रिटेन रहता है. तो आज हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अबाउट द एथिकल रिक्वायरमेंट. आप देख सकते हैं कि आईसीएआई ने क्या किया है, जस्ट वर्ड्स लिखे हैं. नो मीनिंग हैज बीन communicated to you in its study material for the purpose of essay 200. Yes, these all terms are being explained in सीए फाइनल, जिसमें कि हमें पूरा एक्ट पढ़ाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के ऊपर, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, जहाँ पे हमें वॉयलेटिव एक्शंस के बारे में बताया जाता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया जाता है. देन अगर हमने किसी चीज को ब्रेक किया, वॉयलेट किया, तो हमारे ऊपर कौन कौन से डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं ये हमें बताया जाता है. बट we will be restricting our topic, our discussion only to these 5 terms. Right, guys? So, ethical requirements relating to an audit of financial statement. The auditor is subject to relevant ethical requirement, including those pertaining to independence. दो चीजें हैं हमारे पास. एक तो है एथिकल रिक्वायरमेंट जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, और एक हमारे पास है इंडिपेंडेंस. ऑडिटर शुड बी independent as well as should be following ethical requirements related to financial statement audit engagement. जब भी वो किसी ऐसी एंगेजमेंट में एंटर करेगा जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना है, ऑडिट, तो वहां पर दैट पर्सन, द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट प्लस एथिकली बिहेविंग. ठीक है, प्लस following the ethical requirements. Relevant ethical requirements ordinarily
comprise the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountant of India। और ये कहाँ पे इशू किए गए हैं? द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में, राइट। इस लाइन में हमने बस भूमिका बांधी है, कहानी बनाई है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, प्लस इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए पास। बट इस लाइन का भी नंबर होता है एग्जाम में, राइट। The code establishes the following as fundamental principles of the professional ethics। अब प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 5 है। कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल? कितने? 5। Ethics relevant to the auditor when conducting an audit of financial statement and provide conceptual framework for applying those principles। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, पहला है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी को मैंने आपको द वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था ऐसे 200 की बेसिक डेफिनेशंस के अंदर। बट आज हम इसको ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई विल बी मेकिंग यू गो थ्रू विद द लैंग्वेज ऑफ द ऑडिट। ऑडिट की लैंग्वेज से आपको क्या कराया जाएगा? आज रूबरू कराया जाएगा, ठीक है। तो I'm going with my handwritten notes which I exclusively made for you guys। तो इस नोट्स में सबसे पहले तुम ये देखोगे रिसोर्स फॉर एप्लीकेबल एफआरएफ। इसकी चर्चा हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, बट आफ्टर दी एथिकल रिक्वायरमेंट्स। पूरा 2 पेज का नोट्स है फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। तो अभी बात करते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट के, पेज नंबर 16 था, जिसमें कि हम किसकी बात करेंगे अभी? इंटेग्रिटी की। एथिकल रिक्वायरमेंट में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कितने हैं? जल्दी से बोलो। दे आर 5। पहला कौन सा? इंटीग्रिटी, देन ऑब्जेक्टिविटी, आफ्टर दैट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड देन कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड देन प्रोफेशनल बिहेवियर। These are the 5 fundamental principles: integrity, objectivity, professional competence and due care, then confidentiality and professional behavior। अब इंटीग्रिटी को हम समझते हैं। इंटीग्रिटी क्या होती है? सबसे पहले तो हम बोले ईमानदारी। ईमानदारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, ढीला नहीं है हमारा अंग्रेजी में, ठीक है। ऑनेस्टी, ठीक है। अब थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है 2 वर्ड में। एक अपने पास वर्ड होता है ऑनेस्टी और एक होता है इंटेग्रिटी। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। वी आर इन एग्जाम हॉल, इन्विजिलेटर है तो हम चीटिंग नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी। इन्विजिलेटर रूम के बाहर चला गया तो भी हम चीटिंग नहीं करेंगे। दिस इज इंटेग्रिटी। देयर इज नो सुपरवाइजर, देन यू विल ऑल्सो बी एक्टिंग ऑनेस्ट, ठीक है। Irrespective of whether someone is watching you or not, you are following the principle of honesty and this is called the integrity। आप ईमानदार हो उस टाइम भी जिस टाइम आपको कोई वॉच नहीं कर रहा, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड द इंटेग्रिटी। आपको कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा कि आपको सच बोलना है, आपको ऐसे बिहेव करना है, ईमानदार हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू आर building your trust based on absence of someone and still acting loyal, right? जो कि आज के जमाने में मिलती ही नहीं है लॉयल्टी। चलो काम पे फोकस करते हैं। इंटीग्रिटी में सबसे पहले इंटीग्रिटी का जो मतलब है वो हम ऑनेस्टी से जोड़ेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इंसान, एंड देन ट्रूथफुल, ठीक है, इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। इंटेग्रिटी इज फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। ये सिर्फ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने को कर रही हूँ। इसकी अंग्रेजी जो है हम द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ ऐसे 200 आपको सिर्फ इतना ही लिखना रहेगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द इंटीग्रिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन ऑडिट लैंग्वेज, इन दिस ऐसे 200। यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू राइट दोज 5 fundamental principle and then I'll be making you understand the concept of independence, that one paragraph I was displaying you, ठीक है। तो इंटीग्रिटी क्या है? फाउंडेशन है ट्रस्ट की। तो ऑनेस्टी किसमें होनी चाहिए आपकी? अब बात करते हैं ऑनेस्टी किसमें? रिपोर्टिंग फैक्ट्स। रिपोर्टिंग फैक्ट्स मतलब कि मान लो आई वाज ऑन द ऑडिट ऑफ वन क्लाइंट एंड उसमें मैं क्या कर रही थी? इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही थी, ठीक है।
ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन अगले कुछ एग्जाम्पल में आएगा मेरा। तो मैं इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी, ठीक है, तो मैंने उसमें पाया कि जो मैनेजमेंट है ना, उसने इन्फ्लेट किया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री को। क्या कर रखा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री को इन्फ्लेट किया हुआ है बाय 10 लाख। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस गलती को छुपा लूं, या फिर मैं ट्रूथफुल होके एम्प्लॉयज को बताऊं, रेगुलेटर्स को बताऊं, ठीक है, फेयर डील करूं क्लाइंट के साथ। ठीक है, तो ये क्या है? मेरी इंटेग्रिटी है। मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है। क्यों ओवरव्यू दिया है? क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। ठीक है, इंटेग्रिटी में कोई दिक्कत है किसी को? वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हें एक्ट में भी ले जाके पढ़ा सकती हूँ, बट क्योंकि सीए इंटर लेवल पे वो हैवी हो जाएगा। बट यस, अगर सीए फाइनल वाले चाहते हैं तो अलग से एक सेपरेट वीडियो आपके पास तैयार हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू कमेंट वंस। ठीक है, ये अपना था फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट वाज इंटेग्रिटी। क्या है? दैट वाज इंटेग्रिटी। देन उसके बाद वी हैव ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? हम किसी के प्रति बायस नहीं है, पार्शियल नहीं है, किसी एक की साइड नहीं ले रहे हैं। वी आर न्यूट्रल इन मेकिंग द डिसीजंस, राइट? तो ये अपना हम स्टार्ट करते हैं। यस, सो वी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? नॉट लेटिंग ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है नॉट लेटिंग बायसनेस। कोई बायसनेस नहीं आना चाहिए, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए, एंड ना ही कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब ऑडिटर के सिर पे बंदूक रखी है और उसको बोला जा रहा है क्लीन ओपिनियन देना है, नहीं तो तेरा भेजा उड़ जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? हमारा ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जिसको छुपाने से, कोई मटेरियल में स्टेटमेंट ऐसी हो जिसको छुपाने से ऑडिटर का फायदा हो सकता है। यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट एंड ऑडिटर का, और बाइस तो आप होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे नॉन रिलेटिव हो। वैसे तो अगर आपका कोई रिलेटिव हो गया ना कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट की ऑडिट कर ही नहीं पाओगे, वो हम इंडिपेंडेंस में पड़ेंगे। ठीक है, तो आप बायस भी नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। कॉम्पिटेंस का मतलब ही क्या होता है? स्किल। बट हमें यहाँ पे कौन सी स्किल चाहिए? परफॉर्मेंस की? नहीं 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 नहीं, हमें कौन सी स्किल चाहिए यहाँ पे? प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए, रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। अब हो सकता है जो मेरा क्लाइंट है वो ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, ना ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है। ही इज फॉलोइंग द यूएस गैप, जैसे कि IFRS। तो ऐसा क्लाइंट जो IFRS फॉलो कर रहा है, तो द ऑडिटर, द वन हु विल बी गोइंग टू ऑडिट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसको IFRS का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। आप उस इंसान की क्या ऑडिट करोगे जब आपके पास ही नॉलेज ना हो तो? ठीक है, ऑडिट का मतलब ही क्या होता है? मेरे पास कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी रेलिवेंस मुझे देखनी होती है, राइट? तो वो मैं कब चेक कर पाऊंगी? जब मुझे खुद को नॉलेज होगी। तो बोला भी जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई मरते दम तक खत्म नहीं होती, क्योंकि उसको अपने आप को क्या रखना पड़ता है? अपडेट रखना पड़ता है। जो भी लीगल एनवायरनमेंट चल रहा है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, क्लाइंट की जो इंडस्ट्री है उसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए, प्लस क्या क्या लॉज उस पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उस पर एप्लीकेबल है, उसकी नॉलेज एक ऑडिटर को होना चाहिए। ठीक है, एंड ड्यू केयर। ड्यू केयर का क्या मतलब है? आपने बुक से नॉलेज ले लिया है IFRS का, बट आर यू एबल टू अप्लाई दीज ऑन प्रैक्टिकल वे? क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो प्रैक्टिकली? दिस इज कॉल्ड द ड्यू केयर। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब कि आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स होना चाहिए।
रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है जो क्लाइंट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो बहुत अलग है, जो हमने पहले कभी ना देखा हो। बट इफ वी हैव द नॉलेज वी कैन ऑडिट दैट पर्टिकुलर क्लाइंट बुक्स ऑल्सो। और ड्यू केयर का मतलब हमने नॉलेज एंड स्किल्स तो ले ली, बट वी शुड बी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज ऑन डिलीजेंट एंड केयरफुल मैनर। ठीक है, तो ये क्या था, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। देन वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी। अपने पास क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। वो भी आज के ज़माने में नहीं रही है। आप एक को बात बताओगे 10 जनों को पता चलेगी। तो ये क्या थी, कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्टा। बट एक ऑडिटर को क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। क्या, अब एक ऑडिटर है, वो अपने क्लाइंट्स का बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है, उसको एक एक बारीकी पता होती है कि क्लाइंट का जो रिवेन्यू स्ट्रीम है वो कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से वेंडर है उसके, कौन कौन से बड़े क्लाइंट के कौन कौन से बड़े कस्टमर है, सारा डेटा उसको पता है। कस्टमर का डेटा भी पता है, सप्लायर का डेटा भी पता है, जो उनका टेक्नोलॉजी एंड पेटेंट राइट है उसके बारे में भी उसको पता है, ट्रेडमार्क्स के बारे में भी पता है। मतलब अलग अलग एरियाज होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट। ठीक है, तो सारी चीजों की उसको नॉलेज है। क्या इंटरनल टॉक्स है, इंटरनली हो सकता है कि अभी मैनेजमेंट ने मार्केट में ये डिसीजन या फिर ये अनाउंसमेंट करी ही नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन होने वाला है, या फिर आने वाले दिनों में हम आईपीओ निकालने वाले हैं, या फिर रेड हायरिंग, सॉरी आईपीओ में ही आ जाएगा रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये सब चीजें हैं जो कि अभी मार्केट में पता नहीं है। बट बीइंग ऑडिटर हम मैनेजमेंट से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं एंड मैनेजमेंट को वो बताना ही पड़ता है। तो मुझे इतनी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता है, तो इट्स माय ड्यूटी नॉट टू डिस्क्लोज दीज विदाउट द कंसेंट ऑफ माय क्लाइंट। बिना क्लाइंट के कंसेंट के मैं इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकती इफ दे आर नॉट अवेलेबल पब्लिकली, राइट। तो जब कभी तुम इंटरव्यू भी देने जाओगे ना, तुम्हारे ऑफर लेटर पे लिखा भी रहेगा कि यू आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द कॉन्फिडेंशियलिटी, यू आर नॉट इवन अलाउड टू शेयर द ब्लैंक पेपर, ब्लैंक लेटर हेड ऑफ द कंपनी। ठीक है, ब्लैंक लेटर हेड भी क्या है, वैल्यूएबल एसेट है कंपनी की। ठीक है, एक बार मैंने अपने मैनेजर को, एक बार क्या हुआ था ऑन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्ट, कि मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला था कि ना ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है, इनको प्रिंट करके ले आओ। उसने मेरे को दे दिए थे तो ना वो ब्लैंक पेपर था, बिल्कुल ब्लैंक था। अब मैंने उसको बताया नहीं, ठीक है, तो मैं उसके पास ना ब्लैंक पेपर ही लेके चली गई। मैंने बोला लो आपका प्रिंट। वो बोलने लगा ये तो ब्लैंक है तो मैंने उसको बोला एक बार अपना फोल्डर खोलो, खोलना डॉक्यूमेंट। तो उसने देखा अच्छा ब्लैंक है, ठीक है बहुत बढ़िया है, तुम ब्लैंक पेपर प्रिंट करके ले आई। फिर मैंने उसको बोला सिग्नेचर कर दो अब। वो भी सीए ही था, तो कहता है कि ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करवाएगी तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ऑडिटर के पास बहुत सारा डेटा होता है। मैंने तुम्हें बस रिवेन्यू स्ट्रीम का एग्जांपल दिया, कुछ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस का दिया कि मैनेजमेंट के क्या प्लान्स है। तो ऑडिटर को ये सब डिस्क्लोज नहीं करना है, ये सब डिस्क्लोज नहीं करना है, दैट बोलते कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, बट एक एक्सेप्शन आएगी, वो एक्सेप्शन हम सीए फाइनल में पढ़ते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी को हम किस किस केस में ब्रीच कर सकते हैं। ब्रीच तो नहीं कहूंगी, बट हमें कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन दे रखी है कि हाउ वी विल बी एबल टू डिस्क्लोज द फैक्ट। सबसे पहले तो इफ देयर इज द रिक्वायरमेंट बाय लॉ एंड रेगुलेशन। सीए फाइनल वाले बच्चे इसको कनेक्ट कर पा रहे होगे, सीए इंटर वाले अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है एज पर ऐसे 200। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी का बस तुम्हें एक छोटा सा मीनिंग पता होना चाहिए, और वो भी इसलिए पता होना चाहिए कि तुम इसको याद रख सको। ठीक है, देन उसके बाद है प्रोफेशनल बिहेवियर। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर।
एंड प्रोफेशनल बिहेवियर में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है? यू शुड कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन है, तो लॉज एंड रेगुलेशन में भी सबसे पहला कौन सा है? द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। उसको अगर आपने जैसे ब्रीच कर दिया आपके पास। देन हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल बिहेवियर की। प्रोफेशनल बिहेवियर में बेसिकली क्या है? प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब कि यू शुड कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशंस। लॉज एंड रेगुलेशन में सबसे पहले अपना कौन सा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ठीक है, उसमें बहुत सारे स्केड्यूल्स है हमारे पास, डिसिप्लिनरी एक्शंस है, वहां पे अथॉरिटी के नाम हमें बताए गए हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास राइट है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पनिश करने का। एंड पनिशमेंट कैसी हो सकती है? पेनल्टी लग सकती है, जेल हो सकती है, आपकी प्रैक्टिस को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें कंप्लाई करना है लॉज एंड रेगुलेशन से। एंड इवन जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें इंडिपेंडेंस के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। वी हैव सेपरेट सेक्शन ऑन इंडिपेंडेंस आल्सो, एंड वी विल आल्सो बी कवरिंग देम इन सिलेबस फॉर दी सीए इंटर। ठीक है, अभी हम एसेस कवर कर रहे हैं, and if we will be having the time we will also cover with the chapters of CA inter as well as the batch chapters of CA final, but my first target is to cover up with the essays which are applicable for both CA inter as well as CA final। तो अब हम इसको थोड़ा बुक से पढ़ते हैं, इसके साथ ही मुझे वो आपको एक इंडिपेंडेंस वाला पैराग्राफ भी पढ़ाना है, एंड विच इज द मैजिकल एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि आपको एग्जाम में मार्क्स उठाने में मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये वाला पैराग्राफ तो आई थिंक आई हैव रीड, बट स्टिल वी शुड रीड इट वंस अगेन ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। द ऑडिटर इज सब्जेक्ट टू द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। एक तो एथिकल रिक्वायरमेंट उसको फॉलो करने, इंक्लूडिंग दी इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या होती है कि हमारे जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी और के अनड्यू प्रेशर की वजह से। ठीक है, रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एंगेजमेंट्स। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट जो कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स है वो हमें कहाँ पे दी गई है? कोड ऑफ एथिक्स में। और जो कोड ऑफ एथिक्स है किसने इशू किए हैं? आईसीएआई ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। और फिर हमने ये देखा कि हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में सबसे पहला इंटेग्रिटी, देन ऑब्जेक्टिविटी, देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, देन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड देन प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी मतलब यू शुड बी ऑनेस्ट, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि यू शुड नॉट बी बायस्ड। देन उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब यू शुड हैविंग द रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल and should be able to apply those knowledge and skills in your practical scenarios। And then confidentiality means कि you should be loyal, you should maintain the secrecy of the facts जो भी client से आपको पता चला है during the tenure of the audit। देन उसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर, यू शुड कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, इतना जल्दी रिवाइज हो गया 30 to 45 सेकेंड्स के अंदर अंदर। आप जब किसी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो वो आपके कुछ सेकंड्स में भी क्या हो जाती है? रिवाइज हो जाती है। ठीक है, ऑडिट इज नॉट टफ सब्जेक्ट, ऑडिट इज जस्ट टू मेक द इंटरेस्ट। सबसे पहले आपकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसका आपने नॉलेज लिया एंड फिर उसको आप एक ऑडिट की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। एंड वो ऑडिट की लैंग्वेज समझाने के लिए मैं बैठी हूँ। ठीक है, then we have the paragraph which is in case of an audit engagement इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जो ऑडिट एंगेजमेंट वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। जो ऑडिटर है वो ओपिनियन किसको दे रहा है? स्टेक होल्डर्स को, वेरियस स्टेक होल्डर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड बाय द कोड ऑफ एथिक्स दैट द ऑडिटर बी इंडिपेंडेंट। कोड ऑफ एथिक्स क्या चाहते हैं कि वो रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो तो करे ही करे, बट दैट ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो। एंड इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। माइंड मतलब कि योर डिसीजन विल बी yours only, it will not be influenced by the others, it will be the decision which you have made by your own will, your own understanding, your own analysis, your own observations। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप माइंड से अपने डिसीजन खुद लेते हो, बट आपके तो क्लाइंट के साथ बोलचाल ही ऐसी है कि कोई बोले कि भाई ये तो इसका रिश्तेदार ही लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स ओनली। ठीक है, ज्यादा भाईचारा नहीं रखना है, मतलब वो वाला भाईचारा नहीं कि आप लड़ मड़ कट रहे हो कि मेरे को तो गलतियां निकालनी है, जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, the auditor's independence from the entity safeguard the auditor's ability to form an audit opinion। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा तो जो उसका ऑडिट ओपिनियन होगा वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ही रहेगा, मतलब कि वो खुद का ओपिनियन दे रहा होगा। ठीक है, सेफ गार्ड, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट है तो ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो भी क्या हो जाएगा, सेफ गार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर है ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस दैट माइट कॉम्प्रोमाइज द ऑडिट ओपिनियन। हो सकता है मेरे को क्लियर ओपिनियन नहीं देना था, मेरे को क्या देना था, मॉडिफाइड ओपिनियन देना था। अभी मतलब हम ऐसे 700 सीरीज में बात करेंगे इसका कि क्लियर ओपिनियन क्या होता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्लियर ओपिनियन को ही बोलते हैं, देन मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है जिसमें हमारा डिस्क्लेमर, एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन आता है, वो सबका एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं बट इन सीरीज 705। ठीक है, एक टाइप को 701 एंड 706 को छोड़ भी सकते हैं बट आई थिंक मुझे आपको ऐसे 700 सीरीज का ओपिनियन वाला पार्ट तो पढ़ाना पड़ेगा। बट आई वाज थिंकिंग कि जब आपको ऑडिट का बेसिक ही नहीं पता तो आपको ओपिनियन जल्दी से कैसे समझ आ जाएंगे, तो इस वजह से मैंने बेसिक ऐसे इसको ही उठाना स्टार्ट किया है पहले। ठीक है, to independence enhance the auditor's ability to act with integrity, to be objective and to maintain the attitude of professional skepticism। Integrity आपको पता है, objectivity भी पता है, but ये अब professional skepticism कौन सी बला का नाम है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, यू शुड बी हैविंग द क्वेश्चनिंग माइंड, you should be having the questioning mind and you should be alert to the situations। ठीक है, तो एक तो जो आपके मन में क्वेश्चन आए रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो लॉजिकल है, यू शुड आस्क टू द मैनेजमेंट, यू शुड आस्क टू द क्लाइंट एंड बीइंग अलर्ट टू द सिचुएशन। आपके साइड में अगल बगल में झोल झपाटे चल रहे हैं तो आपको उसके बारे में भी अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या था अपना एथिकल रिक्वायरमेंट्स थी। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का अपना स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, देखो जब मैं सीए स्टूडेंट थी ना तब मैं क्या करती थी, कोई भी बड़ा पैराग्राफ या कुछ भी ऐसा होता था जो मुझे पता है कि ये एग्जाम में आने का चांसेस रखता है तो मैं उसकी समरी बनाती थी। अब समरी कैसे बनाते हैं, किसी आंसर को याद रखने के लिए उसको एक स्ट्रक्चर प्रॉपर मैनर में याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, मीनिंग आपको पता चल गई, क्या लिखना है ये भी पता चल गया, बट उसको लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रखना है, जितना टाइम हमने अब लगाया है वो टाइम मुझे फ्यूचर में ना लगे, हमें इस चीज का एंश्योर करना है। बिकॉज जो अपने सीए फाइनल या सीए इंटर के पेपर है, इवन सीए फाउंडेशन के भी हमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 डे का छुट्टी मिलता है, तो 1.5 डे में पूरा सिलेबस को कवर अप करना इज नॉट एन इजी टास्क। तो उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं चीजों को। कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट, है ना। तो पहला पैराग्राफ में हमने क्या बात की, पूरा समझ लिया, पूरा पढ़ भी लिया, रीड भी कर लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पैराग्राफ में हमें बोला है एथिकल रिक्वायरमेंट का, एथिकल रिक्वायरमेंट प्लस ऐसे लिखना होता है, प्लस क्या, इंडिपेंडेंस, इसका बात किया गया है और इसी को हमें क्या करना है, पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में, प्लस इसमें हम लिखेंगे कोड ऑफ कंडक्ट जो किसने इशू किया है, आईसीआई ने। ये अपना हो गया पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ के 3 कीवर्ड है। देन उसके बाद सेकंड में हमें बताया गया फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्या बताया, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गई। देन उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको बताया, जो कि लास्ट पैराग्राफ है, उसमें हमें किसको स्ट्रेच करना है, इंडिपेंडेंस को। बस क्या रह गया इसमें, और इंडिपेंडेंस में भी ऑफ माइंड, पहला हो गया ऑफ माइंड एंड सेकंड अपने पास आ गया ऑफ अपीयरेंस। क्या आ गया, ऑफ अपीयरेंस।